In India, rampant illegal mining threatens an ancient mountain range, the Aravallis. पहाड़ था, उस पहाड़ी का मान था। तो फिर क्या हुआ? इसको लेगा केरसड़ा ब्लास्टिंग करके। The mines are feeding India's infrastructure boom, but they're also having a devastating impact on the local population. बहुत ज्यादा गुस्सा आता है इन केरसड़ों पे, कितनी मिट्टी उड़ रही है, पापा की तबीयत कितनी खराब है, मतलब मौत के मुंह में चली गया थे। Activists say the mountains are crucial to safeguard the environment and the future of hundreds of millions of people. नहीं, हम चुपचाप देखते रहेंगे तो हम भी खत्म होंगे, आगे वाली जनरेशन भी खत्म होगी और ये पहाड़ भी खत्म। 101 East travels to Rajasthan in India to investigate the assault on the Aravalli Mountains. It's nightfall in the village of Bharala in India's Rajasthan state. Anti-illegal mining activist Kailash Meena and his associate Mahesh are planning an investigative mission. They received a tip-off that nearby stone mines are operating at night, which is illegal. यह ज़्यादा थोड़ा रिस्क है, लेकिन इस रास्ते से चलना चाहिए। इलीगल काम रात को 6 बजे के बाद कर नहीं सकते। तो अपने पास और एविडेंस है, तो एक एविडेंस ही है रात को काम करने की। By carrying out the mission, Kailash is breaking a promise he made to his family to not leave his home after dark. इन्होंने मुझ पे 6-7 बार हमले किए हैं, मैं बाल बचा हूँ। हम रहे ना रहे, ये इलाका अच्छा रहे, यहाँ की जनरेशन और आबो हवा सब ठीक रहे, इसलिए हमें ये रिस्क कई बार उठानी पड़ी। The team soon find nighttime mining activity. They have to be careful not to be spotted. Illegal mine operators in India have previously attacked multiple activists and even killed police officers. ये पूरा तरह से इलीगल है, रात को ये नहीं कर सकते। बड़ी बिजली की लाइनें हैं, आबादी पास है, सब कुछ है, उसके बावजूद रोड का गांव का रास्ता है। इसकी कुछ एविडेंस इससे क्रिएट कर रहे हैं और उस तरफ से एक और कोशिश करते हैं। Kailash gets a clear shot of the entire operation. It's much larger than he had imagined. The team drives to a safe place to review the evidence. ये चल रहा है अंदर माइनिंग का, ये चल रहा है। ये जो अपन अब फोटो जीपीएस कैमरे से फोटो खींच के लाए हैं, ये एविडेंस है कि रात को ये एक्टिविटी कर रहे हैं। ये एस्टेब्लिश करने के लिए अपने को ये बहुत जरूरी है। एविडेंस हो गई अभी। The mountains that Kailash has repeatedly risked his life to protect are these, the Aravallis. They're estimated to be around 670 million years old and stretch 700 kilometers from Gujarat in western India all the way up to the capital, New Delhi. They're the source of multiple rivers, home to a large variety of trees and endangered wildlife. Experts say they are the main barrier protecting the fertile plains of northern India from the dry, hot winds of the Thar Desert. But these mountains are under attack. The farmer whose fields are just around here, Pradeep Chand, he's been telling me that this used to be a hill. तो ये पहाड़ होता था कल? पहाड़ था, उस पहाड़ी का मान था। तो फिर क्या हुआ इसका? इसको लेगा केरसड़ा ब्लास्टिंग करके। This hill behind Kailash's village could also have been blown away if he hadn't intervened to save it 25 years ago. बिल्कुल घर के पास से ये जब शुरू हुआ तो पूरा डस्ट वगैरह आना शुरू हुआ, उससे हमारे परिवार में ताऊ के लड़कों बीमार हुआ और फिर धीरे धीरे समझ विकसित होती गई। मैं कोई अकादमिक एक्टिविस्ट तो था नहीं, ये हमारा एक्टिविज्म बन गई। नहीं, हम चुपचाप देखते रहेंगे तो हम भी खत्म होंगे, आगे वाली जनरेशन भी खत्म होगी और ये पहाड़ भी खत्म। As the number of both legal and illegal mines grow across Rajasthan, Kailash uses his decades of experience to help organize other communities to fight back. हम इसको लेके गए, फिर एक्सप्लोजन को लेके गए, जहाँ भी छोटा मोटा दिक्कत होती है हम उनके साथ खड़े होंगे, तो ये आंदोलन हो गया।
हमारे जो देश की तरक्की हो रही है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, बिल्डिंगें बन रही हैं, तो वो मटेरियल कहीं से तो आएगा। तो आप उनको क्या कहते हो? आप देखिए तरक्की के मायने क्या है, कितने लोग खुशहाल हैं। कुछ लोगों के लिए बढ़िया सड़क बने, कुछ लोगों के बढ़िया गाड़ियाँ हों, कुछ लोग लेने के लिए हवा के लिए तरसें, पानी के लिए तरसें। एक कितनी बड़ी आबादी से आप उसका ये हक छीन रहे हैं, और कितने से लोगों को, जिन लोगों को फायदा दे रहे हैं वो किन लोगों के जीवन की कीमत पे दे रहे हैं। Kailash says his activism against illegal mining has led to him being implicated in multiple court cases. Today, he has a hearing in a 13-year-old case where he's accused of disturbing the peace for protesting against the expansion of a mine. Kailash is hoping to have the case dismissed, but neither the government prosecutor or witnesses show up. हम तो बहुत वो था, मुझे कोर्ट पे इन पे बड़ा ट्रस्ट था कि हम तो कानून को मानने वाले हैं, तो कानून को मानने वालों को क्या दिक्कत है। लेकिन धीरे धीरे पता चला कि कानून को मानने वालों को सबसे ज़्यादा दिक्कत। Kailash is undeterred. He leaves the court to go meet a group of villagers who live alongside what has become one of the largest mines in the area. The Jodhpura limestone mine provides raw material for this massive cement factory. मतलब यहाँ पे काम कम करने की बजाय बढ़ाया जा रहा है। अच्छा। डबल शिफ्ट। The company running the mine says it's a pioneer in protecting the environment and people's safety. But nearby residents say it is flouting multiple environmental regulations. आपके सामने इसमें पानी दिख रहा है, ये नोटिफाइड डार्क जोन है। नोटिफाइड डार्क जोन में इस पानी को हक या तो इस इलाके के आदमियों पे है, पशुओं का है। अब ये इसको वेस्ट कर रहे हैं। And this is the other major issue. People living around the mine say explosions like these are destroying their homes. हर मकानों में दरारें, छज्जे टूट रहे हैं। कई मकानों में तो आप देख लो कि हम बल्ली लगा के रख रहे हैं। The villagers here in Jodhpura have been protesting every day for more than a year, demanding the company relocate them from the area. Kailash organized for a group of independent experts to study the impact of the mining and explosions on the health of local residents. ये ब्लास्टिंग से नीचे के पानी में वो रिपोर्ट लेबोरेटरी की फ्लोराइड और नाइट्रेट भी चला गया पानी में, ब्लास्टिंग से नाइट्रेट भी चला गया पानी में। उससे किस तरह की बीमारियां हो रही है, ये सारी चीज़ें हमने। आज धरने के 408 दिन हैं, तो आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत जिंदाबाद, बहुत बहुत बधाई, और ये लड़ाई जल्दी से जल्दी आप जीतो, ये मेरी कामना है। और जितने एक्सपर्ट थे बुलाए, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई। हमने इस रिपोर्ट के आधार पे बात की कि ये सब चीज़ें हैं, आप देख लीजिए। हमने खुद ने हमारे बच्चों को सांस की बीमारी हमने थोड़ी लगा दी, हमारे घर हमने थोड़ी तोड़ लिए। Mothers from the village tell me they have sent their children to live with relatives elsewhere. हमारे यहाँ की तो ऐसी हालत हो गई कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है ना, 60 साल नहीं भुगतेगी, 60 साल से पहले खत्म हो जाएगी। इतनी कैंसर हो रही क्यों पैदा हो रही से, ये बताओ। 24 घंटा या डस्ट जाती रहे से। The situation is desperate for the villagers of Jodhpura, but not everybody wants to leave. Harilal Soral and his family live and farm on a patch of land right next to the mine. नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते। ये आपका ही घर है क्या? हाँ जी, हमारा घर है। अच्छा, ये The family say they haven't been offered adequate compensation for their land. क्योंकि ये जमीन है, ये खनन क्षेत्र में आ रही है। खनन क्षेत्र में आ रही है तो खनन क्षेत्र की कीमत ही अलग होती है, और ये जन्मभूमि छोड़ने के लिए मन नहीं करता, और ये वो जिस कानून के हिसाब से मुआवजा मिलता है मुआवजा देते नहीं ये लोग। Before the mine, Harilal said the area was prime agricultural land. Even though very little grows here now, he still feels attached to it. The family makes a meager living from their animals. To save on legal expenses, Harilal is now studying environmental law. ये आपके पूरे केस के पेपर हैं इसमें? ये इसमें केस के भी है। अब एक तरह की आदत सी पड़ गई है कि स्लो पॉइजन खा रहे हैं। नहीं, जानवर क्या से डरते हैं, नए अगर क्या से वो लेके आते हैं क्या से भैंस, तो खटखट के पीछे दूध देना ही बंद कर देती है।
हमने संविधान पढ़ा है, हम कानून पे विश्वास करते हैं। कानून के हिसाब से पैसा देंगे तो हम खाली करेंगे, नहीं तो हम क्या से माननीय सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे और जीतेंगे भी हम। हमें कानून पे विश्वास है। Harilal has a hearing coming up in 2 weeks for his claims around compensation. But till then, he has yet another sick cow to deal with. Despite his best attempts, it dies 2 days later. The mines are only one part of the problem. Stone crushing units like this one, which process the mined rock into construction material, are also a major health hazard. The fine, toxic dust they emit is a leading cause of silicosis, a deadly, incurable disease of the lungs that affects tens of thousands of people in Rajasthan. It is difficult to breathe here. We're sort of in the epicenter of where there's a lot of illegal mining, there's stone crushing units. We've come here to speak to residents about how it is to live in the middle of all this. The village of Chotia is surrounded by stone crushing units, most of them running without following state environmental guidelines. Om Prakash Maini grew up here. होती है सफोकेशन, घुटन सी हो रही है मतलब, तो आधे घंटे में ऐसा हाल हो रहा है मेरा। तो आपका मतलब जहाँ पे डेली रहते हो? रहता है सर, देखो ना आंखों में पानी हमेशा चलता रहता है मिट्टी के कारण। यहाँ पे लोगों की सिलिकोसिस, दमा, चर्म रोग ऐसे हैं। Toxic dust from the stone crushing units covers everything around Chotia. Om Prakash takes me to see his fields. सर ये गेहूं की है, सरसों गेहूं। हाँ, खाने के लिए पैदा करते हैं, लेकिन ये होती नहीं है मिट्टी की वजह से। ये सरसों है, देखिए इस पेड़ पे कितनी मिट्टी कर रही है। अब इसको कौन खाता, तू खाएगा तो बीमार। आदमी नरक में पैदा जैसे जी रहा है इसमें। दवाइयों के साथ हमेशा बस दवाई खाते रहते हैं, चलता है। यहाँ पे क्रशर आने से पहले सिलिकोसिस के केस होते थे? पहले जानते नहीं थे क्या थी सिलिकोसिस सर। अब ये 10-15 साल से सिलिकोसिस की छोटी सी ढाणी है, इसमें आपको 8-10 लोग तो चले गए सिलिकोसिस से। किसी के पास सर्टिफिकेट फेफड़ा खत्म है, आपको दिखाऊंगा मैं। Silicosis is caused by the inhalation of fine silica dust emitted by mines and stone crushing units. Om Prakash took me to see a relative whose lungs have entirely collapsed because of the disease. हाँ मतलब बोला भी नहीं जाता। नहीं बोले जाते, इससे हकीकत में नहीं बोले जाता सर। वो देख रहे हैं साथ से बोलते बोलते भी। क्रेशरों पे भी काम करते थे, जमींदाराई करता था, ट्रैक्टर चलाते थे। क्रेशरों पे दरेसी भी करे खूब, रोड़ी भी बाटा फोड़ा खूब, और क्रेशरों पे मतलब सांस लेने में, सांस में उल्टी आवाज, रोटी नहीं खाई जाती है, रोटी नहीं बाती है। As a silicosis sufferer, Lakshmi Chand Meena should be eligible for a government payment of almost $4,000 and a monthly pension of $15 to help pay for treatment. और जो ये सिलिकोसिस का जैसे आपको हो रहा है, तो सरकार ने आपको कुछ इसमें मदद किया है? मतलब आपको कुछ नहीं करी है, रिपोर्ट बना के सब कुछ दे दिया, आगे जांच सब कुछ कराया है, फेल कर दी उसको। तो क्या कहते हैं कि आपको नहीं है सिलिकोसिस? नहीं किसी सिलिकोसिस। डॉक्टर सिलिकोसिस बताता है, डॉक्टर सिलिकोसिस की भी दवाई दे रहा है। Lakshmi Chand's silicosis diagnosis was approved by local doctors but rejected by state authorities. His daughter Rekha tells me the family have had to sell their land to pay for his treatment. आपको ये पता नहीं सकती, आप आईसीयू में निकला के लाए थे इसको, पापा जी को, पिताजी को। बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए थे ये। हम मरेडे लेके आए थे, हाथों में लेके आए थे। मैं खुद वहाँ पे हॉस्पिटल में थी, आयुष्य में जवाब देते डॉक्टर ने घर ले जाओ, ये नहीं जिएगा ये, इसलिए मैं घर ले गई थी। तो कितना गुस्सा आ रहा होगा ये बताओ आप। मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है इन करेसरोलों पे। कितनी मिट्टी उड़ रही है, पापा की तबीयत कितनी ख़राब है, मतलब मौत के मुंह में चले गया था ये। अब किस्मतों से ये बैठा है, अभी भी दवाई से चलता है, अभी भी कुछ भी नहीं है ये। कह रही हूँ हकीकत में, अब रात को रुक के देख लो यहाँ पे, रात को है ना इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, सांस नहीं आता इस रात को।
Lakshmi Chand's condition deteriorates during the night. Without government aid, the family are forced to hitchhike to hospital. Lakshmi Chand isn't alone. There are tens of thousands of silicosis cases which don't get approved by the government's complex and constantly changing certification process. And even in cases that are officially recognized, only 1.5% have received compensation. Almost everyone we spoke to in this area, including people who work in the mines, complained about government inaction when it came to tackling not just illegal mining, but also the trucks, pollution, and related health problems. जो सरकार सवच पानी सवच हवा ही नहीं दे सकती, वो सरकार किस काम की? निकम्मी सरकार है। In late 2023, the Bharatiya Janata Party beat the ruling Congress party in the state election in Rajasthan. It immediately launched a campaign against illegal mining. Today, we're following Officer Robin Singh, a transport inspector on the lookout for dangerously overloaded trucks. अभियान में तो क्या है, ज्यादा गाड़ियां पकड़नी है। अच्छा हाँ, अभियान में तो मतलब 5 लाख 10 लाख कितना भी हो, पर अभियान में लाओ। अच्छा। आ तो नहीं रहा है ना अभियान, सबको पता, आपको पता चल गया दिल्ली में बैठे बैठे, तो जो गाड़ियां चला रही है उनको पता नहीं है, इतने बेवकूफ थोड़ी है, उनको 15 तारीख को ही पता चल गया, वो अपनी साइडों में लगाते हैं। जब हम रात को 12 बजे तो घर जाते ही होंगे, तो 1 बजे उठ के अपनी गाड़ी ले जाते हैं। Robin allows us to accompany him on patrol. En route, he explains the importance of mining to the local economy. तो देखो, सरकार को रॉयल्टी का पैसा आता है। आप समझो, जो रॉयल्टी, ये जो लीज एरिया है ना, इसमें 75 करोड़ की लीज तो एक ही पार्टी ने ले रखी है। तो इतना रेवेन्यू सरकार को नीम का दाना से रॉयल्टी दे रही है, तो आपको पता है ये माइनिंग तो चलेगा। माइनिंग लीज ले रखी है ना सरकार से, परमिशन लेके चला रहे हैं, उसमें वो कुछ थोड़ा बहुत ओवरलोड निकाल देते हैं, तो उसको पकड़ रहे हैं। Normally jam-packed with trucks, the roads are suspiciously empty. Robin knows his every movement is being tracked, but he's also under pressure to hit his targets. ये पकड़ लो। कौन दे? आ जाओ। चलो बनावा क्यों कागज आ रहे हैं? बनावा क्यों कागज आ रहे हैं अंदर? कागज ले आओ। ये एक धक्के चढ़ा है। बैठ जाओ कागज ले रहा हूँ। कागज ले आऊंगा, वो दूसरा कागज ले आओगे, ये कागज लेने के बहाने भाग जाएगा, फिर गाड़ी कौन सा? अभी नहीं जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा भाग। बैठो समझ के अंदर। Robin suspects the truck is carrying more material than is legally permissible. कांटा पर्ची दिखाओ। कांटा पर्ची वो लाने नहीं दिया, वो मोबाइल पे मंगा लो। मोबाइल पे मंगा लो, कोई नहीं। अब तो आए कि ये शर्माने क्या हुआ? नहीं पता शर्माने। जो अवैध खनन की लड़ाई उसे कैसे जुड़ा हुआ है? अवैध खनन देखो, आप ई रवन्ना जो लाएगा ना, उतना ही लाएगा जितना इसको सरकार ने परमिशन दी है। ई रवन्ना बोले तो खान विभाग से, माइनिंग विभाग से, पर उसके अलावा जो 15 या 20 टन जो माल लेके जाएगा, उसकी तो चोरी कर रहा है ना इसमें ओवरलोड में। A quick check reveals that the truck is carrying 18 extra tons of construction material. ऑनलाइन कर देना। ऑनलाइन कर देगा अभी। चाबी दे दो, अभी बंद करें। चाबी दे दो, थाने में जमा कराएंगे। चाबी दे दो, चालान ले लियो। एक कस्टमर, आप मालिक को बोल देना, ये 23,000 रुपए का है। आप ड्राइवरों से बात करो, इनके व्यू देखो, ये कहेंगे ये आरटीओ वाले हमें परेशान करते हैं, ये इनके व्यू देखो, आप समझ रहे हो। सबका अपना अपना है, कोई जो फैमिली वाला है, कोई घर वाला है, वो ये कहेगा कि गलत है, यहाँ ओवरलोड चल रहा है, वो है। पर्यावरण देख लो यहाँ का, वो ह्यूमन लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब पॉलिटिकल लेवल की बात नहीं कर रहा। हाँ। इस पे देखो कि सांस लेने में दिक्कत आए, यहाँ पे सारे पौधे आप देख लो, सारे तो ये सफेद हो रखे हैं। सर ये माइनिंग जोन है, आप यहाँ रहने के मकान कहाँ है? आप कोई देख रहे हो? आप चारों तरफ कोई मकान नहीं है। हाँ मैं समझ गया आप। हाँ तो वो लीज चल रही है बगल में, तो सरकार ने या तो गलत दी है, सरकार को देनी नहीं चाहिए। अब उससे धुआं निकलेगा और ये वो ठीक है, वो पोल्यूशन नॉर्म्स कुछ स्टैंडर्ड फॉलो करता है, पर कुछ तो निकलेगा, उससे नुकसान भी होगा।
With the campaign coming to an end, I go to speak to Robin Singh's boss about what it has achieved. But in her office, when we make it clear we want to speak about silicosis and the environmental cost of mining, the interview is suddenly called off. We also attempt to speak to a number of mine and stone crusher owners. Even though their workers are eager to speak, not a single owner agrees to an interview. अभियान चलाते हो ना, इससे बेटर अभियान ऐसे चलाओ कि यहाँ तम्बू गाड़ के बैठ जाओ, हटो ही मत, अगर इसको बंद ही करना है। Outside, the trucks are back and racing to make up for lost time. We see firsthand how dangerously they drive, the dust reducing visibility on the road. Accidents are common, and for the families affected, catastrophic. We're at the family home of 23-year-old Amit Meena, who was on his way to play cricket with two friends. All three were killed by a mining truck villagers say was speeding and on the wrong side of the road. रोड के किनारे तक गाड़ी भी नीचे ही खड़ी थी, उसको ओवरटेक करके आया ना, तो फिर रोका भी नहीं गाड़ी, मतलब घसीटते ही ले गया वो 200 मीटर तक। घसीट के लेके गया, 200 मीटर तक लेके गया है, तो गाड़ी रुकती नहीं, कैसे रुकेगी? जब धीरे होगी तब रुकेगी ना, ऐसे कैसे रुकेगी? जिसके घर में एक ही बच्चा है वो क्या करेगा? जिसकी आश ही वो थी। कल 3 खत्म हो गए वहाँ माकड़ी फाटक के पास। वही तो कह रहा हूँ ना, कल 3 लड़के हो गए। का काम नियमों की पालना ही नहीं होती है। और मैं तो खुद पंचायत समिति मेंबर हूँ, इसका हर पंचायत समिति की मीटिंग में हम उठाते, एक खाना पूर्ति करते। सबकी एक चीज़, जब आप जानते हो कि पैसों का खेल है, पैसों के खेल में सब कुछ स्वाहा है। Every week while reporting the story, we heard reports of accidents involving overloaded trucks. One of the worst led to the death of 3 policemen when their car was crushed by a speeding truck that overturned. The truck was transporting gravel from a stone crusher owned by a local government official with political contacts. हर साल मैं कहता हूँ कोटपुतली नीमका थाना के अंदर सैकड़ों एक्सीडेंट होते हैं जिसमें इस तरह की जानें जाती हैं। मैंने पिछली जनसुनवाई में भी कहा है, उससे पिछली में भी कहा है, ये सेफ्टी वाले हर इशू पे मैं पिछले 30 साल में इन सवालों को अपने अपने तरह से उठाता रहा, लेकिन नहीं और कुछ। Kailash isn't giving up the fight. Today, he's helping a group of villagers file a petition against a new mine in their village. And there's a reason why people seek him out. In spite of the setbacks, he's also had some major successes along the way. He's taking me to see the most significant. This mine near Shuklavas village was one of the largest in the region and full of illegal activity. Kailash got it shut down, inspiring local villagers like Radhesham Sharma to join the fight. और ये सारी माइनिंगें जितनी बंद हुई हैं एनजीटी से, अब ये सारी ही अभी थोड़ा सा आराम हमारे को है। पहले बड़ा दुखदाई था और कैलाश जी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है और हमने इनके सानिध्य में लड़ाई लड़ी है। तो हमने कई दौर में यहाँ धरने दिए, हर बार धरने 6-6 महीने लगे, तो प्रशासन ने मजबूरी में आकर के हमारे पक्ष में ही समझौते लिखे और हमारी सारी मांगों को उन्होंने सही बताया। और जो यहाँ पे जीत हुई है उससे जो आपका यहाँ पे बड़ा संघर्ष है एरिया में, उस पर भी प्रभाव आया है? देखो, यहाँ से जो सीख मिली वो हम जीत सकते हैं और असंभव कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने कानून के दायरे में रह के जनता को संगठित करके उनको परास्त किया। सर, पूरे क्षेत्र में अभी ये तो एनजीटी के आदेश से बंद हुआ है, बाकी अभी सारे क्षेत्र में अवैध माइनिंग, ओवरलोडिंग, अवैध खनन, ये सब अभी जारी है। अभी बहुत बड़ा इशू है।
On the 9th of May 2024, the work of activists like Kailash and Radhesham led to an Indian Supreme Court ruling that declared no new mining leases could be given anywhere in the Aravalli Mountains without the court's permission. Enforcing the decision will be the real challenge, and these ancient mountains will continue to need allies like Kailash if they are to survive.